और इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं जो इस जीत की फैमिली के साथ हैं। वॉशिंगटन सुंदर की बहन हमारे साथ जुड़ रही हैं, शैलजा, पहले तो बहुत बहुत स्वागत और बहुत बेहद खुशी है जिस तरह से आप है, पूरे इंडिया खुश है। वॉशिंगटन सुंदर को लेके कितना क्या घर में माहौल है? आप भी क्रिकेटर हैं, आपके पिताजी भी क्रिकेटर हैं, और लेकिन आपके पिताजी ने कमेंट दिया कि उनको गेम फिनिश करना चाहिए था। बिल्कुल, बहुत बहुत खुश हूँ हम सब यहाँ, and we wanted Washington to finish the game and come, so it will be a very very special moment for us. But I'm so happy with the way he played this test match in his debut game. I'm very proud of the way that Indian team won the tournament in this series against Australia. And Australia बहुत strong team है और उधर जाके बहुत अच्छा सा खेल किया हमारा Indian team, and it's lovely to see all the youngsters perform so beautifully. There are many newcomers like Siraj, Natarajan, Shardul Thakur, so everybody performed really well. I'm so happy they made history today. आपके पिछली बात कब हुई, लास्ट बात वॉशिंगटन सुंदर से कब हुई और क्या हुआ? अभी तो शायद नहीं हो पाई होगी जीत के बाद, लेकिन इससे लास्ट बातचीत कब हुई थी उनसे? हाँ, कल बात कर रहे थे हम, और we were just talking normally about how he is taking care of himself. बहुत ख्याल रखना मैं बोल रही थी क्योंकि बहुत लंबा game है, 5 days, and they have to be prepared every day because they are playing long sessions of games. So I was just talking about that to him. So he takes good care of himself, and he eats and sleeps properly, and on that sort. So today is a very big day, and they had to win this game for us, and they did. It was wonderful. शैलजा, आप भी क्रिकेटर हैं और आपके फादर रणजी के प्रोबेबल थे, रणजी खेल नहीं पाए थे। वहां से ये सफर, ये पूरी एक फैमिली की जर्नी की तरह, इसको कैसे देखते हैं? हाउ एक्साइटेड यू आर, हाउ हैप्पी यू आर? बहुत ओवरवेल्म फील रही थी अभी, बिकॉज पापा बहुत मेहनत किया था पहले when he was playing, and he was a fantastic cricketer as well. But during this time, he played alongside stalwarts like Chris Srikanth, L. Sivaramakrishnan, W. Raman. So he was not able to make the cut, but then he was a very competitive cricketer as well. And he's worked so hard for Washi towards his game, and I think that is what we're able to see today. बहुत Washi भी बहुत मेहनत, हमेशा बहुत मेहनत करता है उनका गेम के ऊपर, and he's very disciplined, and he dedicates himself every time he goes onto the field. I think those are the things that आपसे हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन हम आपके साथ फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारत ने एक शानदार जीत हासिल की चौथे टेस्ट में और सीरीज अपने नाम की। भारत के नए उदीयमान खिलाड़ियों ने इसमें शानदार योगदान दिया। उन्हीं में से एक खिलाड़ी हैं वॉशिंगटन सुंदर। इस वक्त वॉशिंगटन सुंदर की बहन शैलजा हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। शैलजा, वॉशिंगटन सुंदर के बारे में अभी लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। उनका जो व्यवहार है या जितने आक्रामक वो फील्ड पर दिखते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी क्या वो वैसे ही हैं या बहुत शांत सौम्य हैं? आप उनके बारे में अगर दर्शकों को कुछ बताएंगे, लोग जानना चाहते हैं वॉशिंगटन सुंदर के बारे में। वॉशिंगटन ऐसे ही है। whatever we see him on the field is what he is generally in person. He's a very calm, composed person. He takes everything in a very balanced way. Acha, bura, good, bad, whatever it is, जीत गई, हार गई, दोनों एक साथ balanced state of mind में he will take, and that is the character that he is showing on the field as well. When he was facing some really tough world-class bowlers like Pat Cummins and Mitchell Starc and the likes of Hazelwood and all that. He was able to face them with so much of grit and perseverance that all that comes because of the way he conducts himself, and he's generally like that. That वही है I mean उसका natural character है. और इस वक्त हमारे साथ पूर्व टेस्ट क्रिकेटर अशोक मल्होत्रा सर भी जुड़े। अशोक सर, कैसे देखते हैं, मतलब जो यंग ब्रिगेड है, ये जो विक्ट्री है फॉरेन लैंड पे, इतनी बड़ी कमबैक विक्ट्री, इसको आप कंपेयर करना चाहेंगे वो जो ईडन गार्डन्स पे मिली थी उससे, या कहीं शायद इंडियन टीम की सबसे बड़ी कमबैक विक्ट्री है ये? जी हाँ, बिल्कुल। अगर मैं कहूँ एक अजूबा, करिश्मा,
क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि 9 प्लेयर गायब होने के बाद जिस तरह इस टीम ने अगर सेकंड 11 की बजाय अगर इसको थर्ड 11 कहें तो गलत नहीं होगा, उसके बाद जो युवाओं ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, जिस तरह का कमबैक किया। मैं जानता हूं कि ईडन गार्डन ऐतिहासिक जीत है, लेकिन ये भी एक ऐसी जीत है जो अगले 50 साल में इस जीत को याद रखा जाएगा। क्योंकि इससे पहले जब हमने ऑस्ट्रेलिया में श्रृंखला जीती थी तो ऑस्ट्रेलियंस का मानना था कि वार्नर और स्मिथ उस टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब वार्नर स्मिथ पूरी टीम उनके पास है, जबकि हमारे पास 9 खिलाड़ी गायब हैं। उसके बावजूद जिस तरह इन युवाओं ने, चाहे आप शुभमन गिल हो, सिराज हो, शार्दुल हो, वाशिंगटन सुंदर हो, नटराजन हो, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी, ऋषभ पंत की तो क्या बात, क्या क्या कहें उनके बारे में। तो निश्चित रूप से ये वो खिलाड़ी हैं, दिग्गज खिलाड़ियों के ना होने के बाद जितना बेहतर इन्होंने प्रदर्शन किया है, और अगर मैं कहूं अचंभित कर दिया है, हैरान कर दिया है सबको, और इसलिए मैं इसको एक करिश्मा बोलता हूं, एक अजूबा बोलता हूं। एक अजूबा है। शैलजा, आपके यहाँ जिस दिन पोंगल था उस दिन भी इन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली थी वाशिंगटन ने, और उनको शायद चक्रो पोंगल कुछ होता है जो आप बहुत पसंद है, वो सेलिब्रेट हो रहा है या कुछ और बड़ा सेलिब्रेशन आपके यहाँ आज? When he's back home, he wants to have some home cooked food, and yeah, obviously, Washi's debut, जो वो न्यूज आ गया था तब हम सब बहुत खुश थे। दैट वाज लाइक पोंगल फेस्टिवल का कुछ बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है हम सब। एंड चक्र पोंगल इज नथिंग बट स्वीट पोंगल दैट्स मेड आउट ऑफ rice and jaggery, and Washi loves to have that at home. And yeah, definitely when he's back, we're going to pamper him with so much of that. I mean, what not, because he's done all of us proud and the whole of this country proud. करेक्ट। हमारे साथ अशोक मल्होत्रा भी हैं। अशोक जी, आपने अभी कहा ऋषभ पंत के लिए कि उनके लिए क्या कहना। ऋषभ पंत कई बार लगता है कि अपने ऊपर काबू नहीं कर पाते हैं, खूब मारने के चक्कर में अक्सर विकेट अपना गंवा बैठते हैं। अब क्या आपको लग रहा है कि वो मैच्योर हुए हैं, उन्हें लगता है कि कब उन्हें संभल कर खेलना और कब आक्रमण करना है? जी बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं ऋषभ पंत की विकेट कीपिंग के चलते उनकी बल्लेबाजी को हम नजरअंदाज करते थे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत की विकेट कीपिंग को अगर हम अलग रख दें और उनको एक बल्लेबाज की हैसियत से खिलाएं तो शायद टीम इंडिया के लिए बहुत बेहतर होगा। फिर उनके पास उनके ऊपर जिम्मेदारी आएगी, थोड़ा संयम से खेलेंगे, और फिर जिस तरह की ये पारी खेली है, यहाँ तक कि पिछले टेस्ट मैच में जिस तरह की उन्होंने पारी खेली थी वो भी काबिले तारीफ है। दर्शाता है कि इस कम ऑफ एज मैच्योर्ड हो गए हैं अब उनको। और फिर जैसे विराट कोहली गए हैं उसके बाद सब खिलाड़ियों ने, ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी का ठेका ले लिया है, कि ऐसा लगता है कि अब मैं भी हूं इस खेल में, लगभग उस तरह का रवैया सब खिलाड़ियों को। और ऋषभ पंत ये मैच जो अगर मैं कहूं एक इतिहास, ऐसा इतिहास रचा है जो मैंने पहले भी कहा कि 50 साल नहीं, अगली जनरेशन नहीं, उसके अगली वाली जनरेशन भी इस मैच को हमेशा याद करेगी। क्योंकि इससे पहले जितनी भी जीत हुई है, चाहे वो वेस्ट इंडीज में हो, ओल्ड ट्रैफर्ड में हो, वो सारी हमारे आंखों के सामने नहीं थी। विदेशों में जो जीत थी आंखों देखी नहीं थी। ये पहली बार एक ऐसी जीत है जो हमारे आंखों देखी है, सबने टेलीविजन पर देखा है, सबको मालूम है किस तरह का दौर से पूरी भारतीय टीम गुजरी है और किस तरह चेतेश्वर पुजारा ने अपने शरीर पर बॉलिंग खाई है, उसके बावजूद जिस तरह जितवाई है, काबिले तारीफ। और एक और जो खिलाड़ी जिसके बारे में हम सब, अजिंक्य रहाणे, जिस तरह उन्होंने रीग्रुप किया 36 पे आउट होने के बाद, जिस तरह एक वापसी की है, जिस तरह एकजुट होकर वन फॉर ऑल, ऑल फॉर वन, उस अंदाज से जो ये क्रिकेट खेली है ये टीम, काबिले तारीफ। और जितनी भी तारीफ अजिंक्य रहाणे की जाए उतनी कम। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक मल्होत्रा जी। शैलजा, आप सभी का एक और भारतीय टीम, एक नई भारतीय टीम भी तैयार है। बेंच स्ट्रेंथ भारत की बहुत ही मजबूत है। इस टेस्ट मैच को देखने के बाद ये साफ हो गया है।